Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, children, today I'm going to start a new chapter, our natural resources. Okay, so what do you mean by the natural resources? आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं. So, whatever the thing which are given by the nature, it is called natural resources, like minerals, plants, animals, water, air, soil. So these are given by the nature and these are called gift of nature also. Clear? So we use these gifts of nature to fulfill our daily needs. हमारी जो daily requirements होती हैं उनको fulfill करने के लिए हम water use करते हैं for bathing, for drinking, है ना, for washing clothes, utensils, for breathing we use air, है ना, for crop production we use soil, minerals, plants, animals, all those natural things which we use, these all are called natural resources. So early humans did not know how to use these gifts of nature. जो हमारे पूर्वज थे उनको नहीं पता था कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाए. So with time they learned to convert these into useful things to satisfy their needs. Okay, so it was then that these gifts of nature became valuable resource for them. और जब उन्होंने इन सब चीज़ों को convert करना शुरू कर दिया तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा valuable हो गई. Like wind is a gift of nature. So when human learned to generate electricity from wind using windmills, so wind became a resource for them. जब उन्होंने wind से electricity generate करना सीख लिया और windmills के through, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही important resource बन गया. Okay, so now come to the resources and their types. Resources क्या हैं, उनके types क्या हैं, किन किस तरह के resources जो है अर्थ पर पाए जाते हैं. So all materials available in our environment which satisfies our needs are called resources. जो भी चीज़ें environment में पाई जाती हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमारी needs को पूरा करती हैं, उनको हम resources कहते हैं. And they are of two types. Clear? So कौन कौन से टाइप की हैं? Natural और human made. If we talk about the natural resources, so these all natural things such as land, air, water, soil, minerals, forest and animals, these all are known as natural resources. And what are human made resources? So things made by human using natural resources are called human made resources, like buildings, roads, machines, इलेक्ट्रिसिटीज़. क्लियर? तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट हम जो तैयार करते हैं, जैसे कि हमने मिट्टी को यूज़ किया या सीमेंट को यूज़ किया, उसको यूज़ करके हमने बिल्डिंग बनाई, या आयरन को यूज़ किया क्योंकि आयरन इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस और नेचुरल मिनरल विच इज़ गिवन बाय द नेचर. तो उसको हम यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना. फिर ऐसे ही जो रॉक्स हैं, रॉक्स को छोटे छोटे स्टोन्स में हम उसको डिवाइड करके यूज़ करके रोड्स बनाते हैं. वाटर है या एयर है, उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो दीज ऑल आर दी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? सो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज which is also called non-renewable, and the another one is inexhaustible resources and which is also called renewable resources. अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो सम नेचुरल रिसोर्सेज such as metals like iron, copper, aluminium and fuels like coal, petroleum, natural gas. पेट्रोलियम जो कि उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं, उसमें से वैक्स निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकाला जाता है, लुब्रिकेंट्स निकलते हैं, वेस्लिन निकलती है ना. फिर उन प्रोडक्ट्स को हम बाद में यूज़ करते हैं. नेचुरल गैस है. तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी exhaustible resources. And why these are called exhaustible resources?
because these products or these materials are available in a limited quantity on the earth surface. तो अर्थ सरफेस पे ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अगर एक बार हम इनको यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होते चले जाएंगे. सो वंस वी यूज़ अप दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम. दोबारा से हम इनको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं. सो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर? नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ exhaustible resources like coal and petroleum. ठीक है? So coal is an important source of power and it is used to cook, heat and to generate electricity. इसको हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, हीट के लिए, गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. And it is also used to run steam engines and factories. एंड आवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल. हमारी कंट्री में इसके रिजर्व्स जो हैं बहुत सारे हैं, इसके भंडार बहुत सारे हैं, ये बहुत सारी जगह पे जो है मौजूद है. सो दीज रिजर्व्स आर हाउएवर लिमिटेड. है बहुत सारा लेकिन लिमिटेड है. जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे ख़त्म होता चला जाएगा और इसको हम क्रिएट भी या दोबारा से नहीं इसको बना सकते. पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर और इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं या उनको निकाला जाता है. सो इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल एंड दीज आर यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. तो पेट्रोलियम में से जब रिफाइन करके डीजल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. किस में? हमारी कार में, बस में, स्कूटर में, शिप्स में एंड एरोप्लेन्स में. सो दीज द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड. और वो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो भी इंडिया में काफ़ी लिमिटेड हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री. और हर कंट्री में तो ये अवेलेबल भी नहीं है. ठीक है? सो दिस इज़ द exhaustible resource. Now next one is inexhaustible resources. So some natural resources do not get exhausted. कुछ ऐसे resources होते हैं जो exhaust नहीं होते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं. So these types of resources are called inexhaustible resources like solar energy. Solar energy हमें किससे मिलती है? सन से, वो कभी ख़त्म नहीं होती है. Air, water, plants and animals. So these are some examples of inexhaustible resources जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते और इनको हम दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं. कैसे? प्लांट्स हैं, रीग्रो करेंगे, दोबारा से प्लांटेशन करेंगे तो हमें नए प्लांट्स भी मिलेंगे. So these are also called renewable resources. If we talk about the solar energy, so the energy of the sun is called solar energy. And plants make food using this energy. So it is also used to light streets, cook, heat water and generate electricity. If we talk about the air, so air is an important natural resource. ये भी एक बहुत ही important natural resource है. And all living things need air to live. सबको जीने के लिए, breathe करने के लिए air की requirement होती है. And wind is used to generate electricity. Now विंड और एयर में क्या फ़र्क है? देखो, एयर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना. लेकिन विंड क्या है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर. सो वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर पर्पजेज़. Electricity generated from falling water is hydroelectricity, which we already learnt, है ना, in our earlier chapter water resources वाले में. Plants give us food to eat and oxygen to breathe. So almost animals depend upon plants for food. So trees prevent soil erosion and give shelter to many animals. So this is why plants are called green gold and soil is needed to grow plants. Fertile soil is good for crops. तो हमारे inexhaustible resources कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल. क्लियर? नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम इनको कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनको हम कंजर्व कर सकते हैं? बिकॉज वी मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली so that they last long.
For example, groundwater is a renewable natural resource, but if we take out more water from under the ground, then what rain can add? Our groundwater reserves will get exhausted. अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, उसको हम जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम बहुत सारा निकाल लेते हैं ज़मीन से, है ना, अगर हम उसमें रेन वाटर ऐड ना करें, अगर उसमें बारिश ना हो या बारिश का पानी नहीं जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टेड, यानी कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? उसको बचाना है, कंजर्व करना है। कैसे? जिससे कि वाटर शॉर्टेज ना हो। और इसको हम कैसे बचाएंगे, कैसे कंजर्व करेंगे? सो वी मस्ट नॉट पॉल्यूट वाटर, एयर एंड सॉइल। पहली बात तो हमें हवा, पानी और ज़मीन को यानी मिट्टी को पॉल्यूट नहीं करना है। नेक्स्ट, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर्स को नहीं मारना है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाना है। एंड वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या जो दूसरे सोर्सेज एनर्जी के उनको हमें डेवलप करना है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, इनको यूज़ करना है, या वाटर एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ वे हैं टू कंजर्व natural resources. Clear? So now we have completed this chapter also, and now I'm giving you some homework. So for homework you will do the checkpoint of this chapter on page number 78, and read and answer question A and question B of page number 80. ठीक है? And you will do these two questions and the checkpoint also in the book only, okay, not in the notebook. Clear? That's right. So I'll meet you in the next video with the question and answers. So till then, take care and bye.